Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's start new chapter which is transportation in plants and animals. This chapter is in term 2 examination. Now as you know that biology is a subject which is related with the living beings. So that's why it is related with the system which has been going on inside the plants and animals. So that's why this chapter is in biology. Okay, let's see the content first. And today I'm going to give you the introduction of this chapter, and then we'll start this chapter in detail. So in this chapter, we will going to understand the title. That's why I have written introduction. So title is like this way, transportation in plants and animals. Now what is plants and animals that you know. But what do you mean by the term transportation? Okay, what is being transported inside your body and why it is necessary. These things we will going to include in introduction. The second thing is circulatory system. This chapter is related with the main two system. Transportation include two types of system in our body, that is circulatory system and excretory system. So that two systems we will going to understand in details for both plants and animals. Generally in this chapter we are talking about the circulatory and excretory system in human beings, and then after the excretory and circulatory system in plants. Okay, so animals means for now for this chapter we are including human beings, excretory and circulatory system. The fourth one is that once the human excretory and circulatory system completed, then we'll move for the next, that is transportation in plants. Okay, so this chapter is quite interesting, little bit long but very interesting, very informative. In this chapter I will give you lots of information related with our body. Okay, so are you excited? Yeah, let's get started. First one is the introduction. So as you know that our body is made up of various types of system. Okay, अगर हम start करें core से, so I can say that skeletal system is the first thing. Once the skeletal system, this is the skeletal system. Okay, then second one is muscular system, right? Okay, then other main systems are like nervous system. This is the most essential system. This system you will going to understand in the 9th standard and 10th standard. About skeletal system you already understood in the 6th standard. Okay, along with the muscles. The muscle system is not you understood in detail. Okay, so it will once again comes in the 9th standard. Digestive system you understood in the second chapter, nutrition in animals. Then the last chapter which we understood, that is respiration in organisms. Okay, so this is the respiratory system, right? Okay, then in this chapter we'll understand this one, that is circulatory system. One more system is there, its name is uh, excretory system. So this is the excretory system. Sorry, this is the reproductive system, and the excretory system we will understand in this chapter. So you see that so many different systems are present. Number one is skeletal. Number two, that is muscular. Number three, that is digestive system. Number four, that is excretion. Digestion के साथ साथ waste भी remove होता है, so that's why I am going to combine it. Digestive system and excretory system, respiratory system and circulatory, ये दोनों combine होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ एकदम directly connected होते हैं. So I am combining both of them, that is respiratory and circulatory system. Last but not the least is reproduction system, and the most इन सबको control करने के लिए जो system चाहिए उसको हम बोलते हैं nervous system. So ऐसे total 7 बॉडी के अंदर सिस्टम्स है जिसको जब आप कंबाइन करोगे तब जाके एक ह्यूमन बींग बनेगा, और शुड आई से अ लिविंग बींग बनेगा. मोस्टली ये सारी सिस्टम्स होती है वो सारे लिविंग बींग्स में कॉमन होती है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उसमें होता है.
फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमारे पास लंग्स है, तो फिश के पास क्या होगा, फिन्स है, उनके पास क्या है, फिन्स है, राइट, ओके। देन अर्थवर्म के पास स्किन है, ओके। देन इंसेक्ट्स के पास ट्रैकिया सिस्टम है। सो लाइक दिस वे यू कैन सी दैट ये सिस्टम्स कॉमन है, लेकिन उनका मॉडिफिकेशन है कि हम लंग्स यूज करते हैं तो दूसरे एनिमल्स ये सारी चीजें यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, ओके। हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है जिसके अंदर हमारे बोन्स अच्छे से मैनेज्ड होते हैं, लेकिन स्नेक है, जो भी रेप्टाइल्स है, उनकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होते हैं, ओके। सो उनकी पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है, कार्टिलेज से बनी हुई होती है, ओके। सो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये सारी चीजें लिविंग बींग्स में क्या है, कॉमन है। इवन द सिंगल सेल्युलर बॉडी अमीबा, अमीबा कैसा है, सिंगल सेल्युलर बॉडी, हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्युलर बॉडी, okay, but also it is performing digestive system with the help of food vacuole, okay. So it is also following the whole digestive system. हाँ, organs are different but processes are same for the respiration, उस पे भी nervous system होगी, okay. So modification is possible but all these systems are common. So, in the sixth standard, we completed skeletal system, right? Along with the introduction of muscle system. Okay, now muscle system will understand in ninth standard. Acha, let me tell you one interesting fact related to muscle. When you smile, जब आप smile करते हो, at that time, do you know how many muscles are working at that time? Yeah, no idea. Okay, let me tell you. जब आप स्माइल करते हो, so at that time आपके फेस के टोटल 27 मसल्स एक्टिव होते हैं, मतलब वो काम कर रहे होते हैं, तब जाके आपकी एक स्माइल होती है ना। सो मसल्स को एक्सरसाइज करवाना हमारे लिए ही अच्छा है, सो स्माइल करते रहो, मसल्स को एक्टिव रखते रहो, राइट, ओके। सो रिमेंबर, एक स्माइल के लिए कितने मसल्स यूज होते हैं, टोटल 27, ओके। चलो बैक टू द टॉपिक, व्हाट एग्जैक्टली वी अंडरस्टूड, सो लेट मी टेल यू द टाइटल का एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। So title है transportation in plants and animals. So transportation means क्या? What is being going to transport and why the transportation is important? As I always told you, science is all about what, why, how and why not. ये चौथा है but why में include हो जाता है. So what is transportation? Let's understand. So whenever you heard the term transportation, so आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि कोई बस है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, या कोई ट्रेन है वो एक जगह से दूसरी, प्लेन है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और लगेज, है ना, ओके। सो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके। व्हाट आर दैट आर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत एसेंशियल है, हमें सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। वेरी बेसिक थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ऑक्सीजन, जो हम 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, ऑक्सीजन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। सेकेंड, हमें और क्या चीज़ है जो जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, सो दैट इज वाटर, ओके। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना एक्सेसिव है। दूसरी चीज़, हमें खाने के बिना नहीं चलेगा, ओके। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली विल फील फैटिक, विल गेट वीक एंड may be possible that after a month we can die. So you can see that oxygen, water and food, these things are the most essential thing which is, I can say that, fuel of a living organism. ये तीनों चीज़ें एक फ्यूल की तरह काम करती है, अगर ये तीनों में से कोई भी एक निकाल दो तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है। So what is transportation? You understood that our body requires these three things, okay, and these three things are being moving from one place to another place inside the body. It is known as transportation of important substance.
ठीक है, कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आपको पता चल गया। ओके, सिर्फ इतने 3 नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वो कौन से हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, सो you understood the concept. What do you mean by the transportation? Moving of substance inside your body, that is considered as a transportation. Now what are the things that is been transport inside our body? So पहली चीज है ऑक्सीजन, उसके साथ कंबाइन कर लो कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों गैसेस हो गए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। खाना और पीना, फूड एंड वाटर, है ना। तीसरी चीज है दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज केमिकल सब्सटेंस। अब केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द 8th स्टैंडर्ड। सो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच इज मोर रिक्वायर्ड। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, विच इज दिस हैजार्डियस फॉर आवर बॉडी इफ इट इज स्टिल देयर इनसाइड द बॉडी। सो उसको हम बोलते हैं वेस्ट। So waste must be removed from your body time to time. So chemical substance and चौथी चीज का transportation that is waste. Okay, so कितने हैं याद रखो, टोटल 6 चीजें हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साथ में, वाटर एंड फूड साथ में, केमिकल सब्सटेंसेस एंड वेस्ट साथ में। तो टोटल 6 चीजों का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट लाइफ आपकी बॉडी के अंदर होता रहता है। 24/7 आप जितने दिन तक जियो उतने दिन तक। ओके, सो ये सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, वी अंडरस्टूड व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट, दैट we are going to understand, then how that we're going to do afterwards. Now why transportation is important? So as you can see that imagine करो कि अगर भरूच के अंदर पर्टिकुलर बहुत सारी, मतलब सपोज इमेजिन कर लो कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे राइस होते हैं, ओके, और बाकी सारी सब्जियां नहीं होती, जबकि महाराष्ट्र में बहुत सारी सब्जियां होती है लेकिन राइस नहीं होते। ओके, और पंजाब पे इमेजिन कर लो कि वहाँ पे गेहूँ बहुत सारे होते हैं। इमेजिन करो अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं तो क्या आप पूरी लाइफ तक सिर्फ चावल ही खाते रहोगे? अगर सिर्फ चावल खाते रहे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? यस, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, वी कैन नॉट एबल टू सर्वाइव। ओके, दूसरी चीज है कि अगर इवन आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो, एक ही जगह पे थ्रू आउट लाइफ टाइम, इज इट पॉसिबल? नो। ओके, सो हमारी लाइफ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके, टू नो द पीपल, टू नो दैट, टू gain the different types of materials and to send the different types of materials, as well as इकोनॉमी का सबसे बड़ा एसेंशियल पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत एसेंशियल है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन इज बीन टेकन इनसाइड विद द हेल्प ऑफ नसल कैविटी। ओके, नसल कैविटी से विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप से ब्रोनकाई में जाता है, ब्रोनकाई से ब्रोनक्यूल्स में जाता है, उसमें से एल्वियोली में जाता है, एल्वियोली में से ब्लड वेसल के अंदर इनलेट करता है ऑक्सीजन। इमेजिन करो अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी बॉडी में नहीं होता है, सो व्हाट कैन बी पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? बिकॉज ईच आपकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी हुई है, अगर ऑक्सीजन हर एक सेल के अंदर नहीं पहुंचा तो वो सेल है वो फर्दर लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, आप जिंदा नहीं रह सकते। सेम फॉर द वाटर, सेम फॉर द फूड एंड ऑल्सो आपकी बॉडी सम सॉर्ट ऑफ, हर एक सेल सम सॉर्ट ऑफ वेस्ट है वो प्रोड्यूस करता है जब वो कोई भी चीज़ को यूटिलाइज करता है। जैसे कि ग्लूकोज उसको मिला, सो ग्लूकोज को वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो उस प्रोसेस के दौरान सम सॉर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल है वो जनरेट होता है। अगर वो सेल में ही रह गया तो वो सेल को नुकसान पहुंचाता है। सो उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे वेस्ट है, जैसे कि एमिनो एसिड्स है, देन यूरिया है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड खाने के दौरान जो भी प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, ये सारे बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर ये बाहर नहीं निकले तो आपकी रिस्पेक्टिव सिस्टम्स को वो क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे।
एंड डैमेज होने की वजह से आप फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाओगे. ओके, सो दैट्स वाई बॉडी में से वेस्ट निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पॉर्टेंट. अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो वेस्ट बॉडी में से बाहर नहीं निकलेगा, एंड अगर वो वेस्ट बॉडी में से बाहर नहीं निकला तो it will create a toxic acid inside your body, and maybe due to that reason any organ can be failed and you may die. Clear? Okay, so why transportation is essential, you understood? Clear? Okay, now how transportation is possible? ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी है, मैंने बोल दिया. फूड ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट है. ओके, ताकि हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, फिर वो ब्लड के अंदर जाएंगे, फिर ब्लड रेस्ट ऑफ ऑल सेल्स को ये सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे एंड आपकी लाइफ प्रोसेसेस आगे बढ़ेगी. Same for the oxygen. Okay, same for the waste. I have explained you this thing. Now, how transportation is possible? So, for that, our body consists of main two systems. First system named as circulatory system, and second system named as excretory system. फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन कौन सी चीज़ें होगी, जो भी काम की चीज़ें हैं, जैसे कि फूड ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, फिर रिस्पेक्टिव सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करना, वेस्ट कलेक्ट करना, फिर उसको बॉडी में से बाहर निकालना. ओके, फिर बॉडी के अंदर ज़रूरत के टाइम पे इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होकर रेस्ट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना. सो ये सारी चीज़ें हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम से होती है. ओके, और शुड ऐसे ब्लड से होती है. क्लियर? एंड वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकालना है. ओके, सो जो भी वाटर वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, वो हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. यूरिन के थ्रू हम लोग लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालते हैं. हमें स्वेट होता है जिससे हम हमारा वेस्ट बाहर निकालते हैं. So that is included in excretory system. So in the next video lecture, I will going to teach you about the first system, that is circulatory system. ये चैप्टर लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग है. Don't worry, we will learn it in detail along with some exciting informations. Okay, and don't forget let me tell you one more thing, that don't feel bored. I will going to ask you different kinds of questions. You must have to answer me into the comment section, and we'll uh, explore our knowledge by this quiz. Okay, so till then just stay happy, stay home, keep smiling, and observe your body systems. Okay, observe the changes which happen inside your body. Okay, have a nice day. Bye.